the Honorable Chief Minister of Sindh, Sayyid Durrani Shah Sahab, to kindly address the Sindh High Court Bar and all our advocates here. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Justice Mansoor Ali Shah Sahab, Chief Justice of the High Court, Ahmed Ali Sheikh Sahab, Honorable Judges of the Sindh High Court, Mr. Murtaza Wahab, Advisor on Law, Salahuddin Saab, President Sindh High Court Bar Association, members of the Sindh High Court Bar, honorable guests, lawyers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मुर्तज़ा मुझे जानता है, शेर व शायरी में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली गलत पढ़ जाऊँगा, लेकिन आज क्या साहब भी बैठे नीचे वो भी जानते हैं, लेकिन आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की 37th बरसी है और फैज़ साहब हमारे स्कूल के मशहूर शायरों में से एक हैं। हमारी सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई जैसे शायर जो हमेशा जिंदा रहते हैं, अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उसी तरीके से उसी कैटेगरी में फैज़ अहमद फैज़ आते हैं और उनके जो अशार हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। अगेन मैं अगर गलती करूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, चली है रस के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। तो आज मैं कहूँगा अपने दिल की बात, बड़ी रेलेवेंट है, बड़ा कोशिश करूँगा कि अपने जिस्म और जान को बचाता हुआ चलूँ। First of all, Salahuddin Saab, I thank you very much for inviting me here today. It's indeed an honor to be here at this prestigious event. Actually, यहाँ आके when I came here, felt a bit nostalgic. I can claim that I've been on this grand lawn of the Sindh High Court before most of you here. Not saying all, they are obviously very senior people. And I'm talking about almost half a century ago. My father was a practicing lawyer at the Sindh High Court. वो मेरी बड़ी बहन और मुझे स्कूल से लेके उनके केसेस चल रहे होते थे। He would bring us here और अपने ब्रीफ्स के लिए कोर्ट में चले जाते थे और हम इन्हीं बागों में खेलते रहते थे। तो मुझे वो मेमोरीज याद आ गई and I'm so happy to be back here today. I can't say the same for the building on my right, unfortunately. I'm sorry if I say something which is not proud. मैं बताता हूँ क्यों। कि उस दिन के late 60s की बात कर रहा हूँ मैं, 40 साल बाद I had to bring my father to this building. A person who served as the chief executive of the province in a wheelchair, suffering from a terminal illness, to get bail so that in that condition he is not in prison. So I don't have very fond memories of this building on the right because of that, and later on because of certain events that I will talk about today. और यही मेरी आज की तकरीर मैंने जब यहाँ से मुझे आए तो मुझे जरूर सोचा मैंने कि what I will say. This leads to the topic of my speech here today.
और वो है इस मुल्क का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. I'm sure I'm talking in front of people who know the constitution backwards. So मैं अपने जो thoughts हैं वो जरूर इधर बताऊंगा. आईन के बारे में. आईन हमारा एक तोहफा था जो श्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को दिया. इस मुल्क की तरक्की, बल्कि मैं कहता हूँ इस मुल्क की एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ द वे मैनर वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इस मुल्क में हर शहरी पे ये फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करे. लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जस्ट कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द वर्ड प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड सिर्फ 3 ग्रुप्स के दिया गया है. इट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव and the judiciary. All of us are sitting here today. इसके अलावा किसी को, हाँ, everybody has to take oath to follow the constitution, but to preserve, protect and defend the constitution, defend any दिफा करना उसका, ये सिर्फ legislature, executive और judiciary का काम है. हम तीनों को साथ मिलके we have to work in tandem to fulfill this requirement, to fulfill this duty that the Constitution lays upon us. Unfortunately, some of the institutions, I will not say all, I will explain that, have been weakened over the years. मैं legislature से शुरू करूँगा. legislature का पार्ट हूँ. बिल्कुल अच्छा पे आ जाते कैमरा लगा था ना वीडियो वाला. हमारी जो 75 का आईन था, अब लेजिस्लेचर में आने के लिए आपको जरूर कोई क्वालिफिकेशंस चाहिए, कोई डिस्क्वालिफिकेशंस होती है विच बार यू फ्रॉम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. तो 73 का आईन था ओरिजिनल फॉर्म में जो आया था, उसमें क्वालिफिकेशंस जो थी वो सिर्फ 2 थी. आप पाकिस्तान के शहरी हो और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में आने के लिए आप कम से कम 25 साल के हो और सेनेट में जाने के लिए आप 30 साल के हो. ये 2 क्वालिफिकेशंस थी और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थी जरूर कि अगर आप इफ यू आर ऑफ एन अनसाउंड माइंड, यस यू कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. अगर आप दोहरी शरीयत रखते हैं, यू कांट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. If you are an undischarged insolvent, आपने डेट है पे नहीं कर सके, you cannot be a member of the parliament or the provincial assemblies. और अगर आप पाकिस्तान की सर्विस में हो, you can't be a member of the parliament. ये 4 चीजें थी. Over time इस लेजिस्लेचर को वीकन करने के लिए तो अमेंडमेंट से, खास तौर पे अमेंडमेंट उस जमाने में आई when the assemblies were not in existence. We had martial laws in this country. और उस मार्शल लॉ के दौरान वो जो 2 क्वालिफिकेशंस मैंने बताई थी वो भर के साथ होगी. अब मुझे आर्यन भाई वाला इनका तो रखते हैं चो और नहीं कहते हूँ मैं, और मेरे लिए कोई और फैसला करेगा कि मैं इस्लामी तकाजे पूरे करता हूँ या मैं अच्छे कैरेक्टर का हूँ कि नहीं हूँ. और मेरे जो मुझे वोटर्स वही करेंगे, उनसे पहले मेरे से ही सवाल हो जाएगा. और जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मैंने बताया 4 थी वो भर के honorable judges are sitting here, the community is here. You won't even remember how many they are because they keep adding on to it. Now there are 16 डिस्क्वालिफिकेशन कर दिए हैं. जो हमारा ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1976 का, उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें रिटर्निंग ऑफिसर देखता था अपनी स्क्रूटनी के लिए. मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि लेजिस्लेचर को वीकन कैसे किया गया, सो दैट वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. और उसमें क्या था कि एक तो चेक करें कि मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ, क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दिया कि क्या थी. दूसरा कि मेरा प्रपोजल या सेकेंडर वो क्वालिफाइड है कि प्रपोजल सेकेंड ईयर और तीसरा तो एक डिपॉजिट देना है. ये 3 चीजें वो देखता था.
और वो आपके नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव या डिसअप्रूव करता था। फर्दर टू दैट आगे चले आप, जो अब 2017 का लेटेस्ट हमारा इलेक्शन लॉ है, उसके अंदर उसको कह दिया जाता है कि भी आप एफबीआर, स्टेट बैंक, एफआईए, नैब, पुलिस सबसे मवाद मंगाए और कोशिश करें कि इसको डिस्क्वालीफाई करें। कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो, कैसे लेजिस्लेचर वीकर हो। मैं ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली खान साहब बैठे हैं, जब he was made judge of the Lahore, sorry, the Chief Justice of the Lahore High Court, उसके अगले दिन अखबार में न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था, इंसान ने लिखा था now lawyer and now an honorable judge। उन्होंने उसमें लिखा था कि somebody like him being appointed Chief Justice of Pakistan's largest province is a miracle। So that miracle did happen। ये जो मैं आपको बता रहा था 2013 में खास तौर पे, उससे पहले भी होता रहा है। मेरी my experience is limited, I've only fought 5 elections। लेकिन उस इलेक्शन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने सवालात जो करने शुरू हुए, यही ना कैरेक्टर देखना है कि नहीं देखना है, वो घरों में चले गए। एंड एट दैट टाइम जस्टिस मंसूर अली खान साहब हैड पास्ड एन ऑर्डर कि आरओज इंट्रूसिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं कर सकते छुट्टी के दौरान, और उससे फर्क पड़ा 2018 और ये तो हो गया पहला हमारा स्टेप। एक और चीज आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 36 ओरिजिनल एक्ट, उसमें अगर किसी के कागजात नामजदगी लेजिस्लेचर में जाना चाहता है एक्सेप्ट हो जाते थे तो उसके खिलाफ अपील हो नहीं सकती थी, तो उसको अपील होती। अब वो रिट जुरिस्डिक्शन में चला जाए तो और बात है कोई, लेकिन उसके बाद वो जो अपील्स का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। सो व्हेन वी ट्राई द लेजिस्लेचर मेंबर वांट्स टू गो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, ही हैज टू गो थ्रू स्क्रूटनी, और उसके बाद मैं कहने बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तो आप जो फिल्टर करके निकालते हैं, जैसे लोग भी आ जाते हैं जिनको तो कई बार फिर लिटिगेशन शुरू हो जाती है, तो वो स्क्रूटनी का फायदा क्या, वो फिल्ट्रेशन का इतना फायदा है। So again, let the मेरा पर्सनल है, let the people decide, they are the best judge। The original constitution, I may be wrong, the law को जैसे मैं I'm not a lawyer, जैसे मैं समझता हूँ, our original constitution और original representation of People's Act, a convict to be elected from jail as a member of the parliament, there was no bar against it। बाद में फिर वो सारी चीजें जो है उसके बाद की बात है। चलिए ये तो हो गया इलेक्शन से पहले की बात। मैं ये सारी बात कर रहा हूँ लेजिस्लेचर को वीकन करना, ये इंस्टीट्यूशंस को वीकन करने की बात कर रहा हूँ, ताकि वो जैसे मैंने कहा प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड ना कर सके आइन को, जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस चीज की। हमारे आइन में है आर्टिकल 225 है कि अगर कोई इलेक्ट हो जाए, ये सारे मरहलों के मराइल के गुजरने के बाद वो इलेक्ट हो जाता है, the only way to challenge an election is through an election petition। Article 225 lays that down, the procedure is laid down in Representation of People's Act। और उसके बाद आपके कवानी जो होते हैं, एक ट्राइब्यूनल बनता है, हर एक पे शर्त है कि आप इलेक्शन रिजल्ट होने के 60 दिन के बाद किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, 2 महीने ये हो गए। उसके बाद ये लाजिम 76 के लॉ में था, 2017 में भी एडमिशन थोड़ा चेंज कर दी गई, 76 के लॉ में था that the tribunal has to decide that case within 4 months। So if I am elected to the parliament,
I have a 6-month period where I should be worried that I might get disqualified. 2 months for somebody to file an appeal against me, 4 months for the tribunal to decide. 2017 में यही था. इसलिए ये जरूरी इसलिए कि अगर आपने लेजिस्लेचर को, आपने मेंबरान को इंडिपेंडेंट रखना है, तो ये जो तलवार लटकाई हुई है वो आपको उससे खानी होगी. और 2076 के कानून में तो कहा कि ये अगर 4 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्राइब्यूनल को हेड करता है वो कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं कि फलाना शख्स इसको डिले कर रहा है, इसको आप तब तक सस्पेंड कर दें ताकि वो ज़्यादा चले. 2017 में इसके कोई भी केस I may be wrong, maybe कोई हुए हो, I don't know, but in most of the cases things never get decided in 4 months. और उसके बाद अब उन्होंने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है 2017 के कानून में कि आप डिले कर सकते हैं, पैसे भरते रहेंगे. तो दिस इज हाउ द लेजिस्लेचर इन माय ओपिनियन हैज बीन यूज्ड. अब आ जाए एग्जीक्यूटिव पे. मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से लेजिस्लेचर को वीकन किया गया उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को भी वीकन किया गया वो टाइम टू प्लान के अगेन जो मैंने कहा कि ये डिफेंड प्रोटेक्ट और प्रिजर्व ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 248 है which gives immunity to the executive, the president, the prime minister, the governors, the chief ministers, federal and provincial minister, that they are not answerable to any court for exercise of powers and performance of their functions. हमारे जो सारे कवानीन बनते हैं उसमें भी ये शिकें होती हैं सारी जो असेंबलीज बनाती हैं. बस हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल बराबर से अगेन एग्जीक्यूटिव को वीकन करना है आपने, तो एक पूरा तरीक़ेकार निकाला. इस वक्त हमारी असेंबली के मेरे पास नंबर्स इस वक्त याद नहीं थे बट मैं सेफ्टी कह सकता हूँ खासतौर पर अपोजिशन के कम से कम 50% मेंबरान के ऊपर किसी न किसी जगह पे केसेस चल रहे हैं. हमारी सारी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पे केसेस चल रहे हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ माई I'm facing cases. Those kind of people call me here. I'm not refusing cases probably appearing in front of you. But आपने इस तरीके से वीकन किया है और हम जाए तो जाए कहाँ. ये सिचुएशन आ गई है और फैज साहब का एक और शेर याद आ जाते हैं इसी रेलेवेंस से कि हमें है अहले हवस मुद्दई की मुनसिफ भी किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहे. और अगर हम कुछ कह देते हैं अगेन सर आई नो आई मे बी ट्रेडिंग ऑन uncharted territory here. You know what has happened to me? A lot has happened in the last 20 years that I've been in politics. And, I've become used to such things. So, कुछ अगर कहो बहुत ही एहतराम से हमें वो कंटेंट के बारे में बताया जाता है कि कंटेंट उठेगी. मेरी हालत ये कि खास तौर पे हमारे जो गुजरा कानून के होते हैं अगर कोई बात कह दो तो पीछे से अभी मुझे पता नहीं मोटे से पीछा के कोर्ट कैसे लगे कि जी आप ये ना कहें ये चीज़ें कि आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं. और ये फिनोमेना जो कि सिवाय मे बी अगेन आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इन मोस्ट डेवलप्ड जुडिशरीज कंटेम्प्ट कानून कवानीन खत्म हो गए. बरतानिया में 80s में एक फेमस स्पाई कैचर केस हुआ था. उसमें वो बड़ा उनका अखबार है डेली मिरर. उसने 3 ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के उल्टी तस्वीरें छाप के और उसका कैप्शन दिया था यू ओल्ड फूल्स. उस वक्त लॉर्ड टेम्पल्टन थे
उनसे लोगों ने अप्रोच किया, देखें मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं करूँगा। इसके पार्टली ये ठीक है, आई एम ओल्ड, देयर इज नो डिनाइंग दैट। बाकी उनके ख्याल में आई एम अ फूल, आई डोंट थिंक आई एम, बट दैट्स फॉर पीपल टू डिसाइड, दैट्स सिंपल परसेप्शन, बट आई वोंट स्टार्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर दिस। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि दिस weakens, in my opinion, both the legislature. So what I'm saying is that sometimes the institutions play against other institutions. This weakens judiciary, this weakens executive. चीजें होती हैं। और जैसे अभी मैंने कहा जुडिशियल ये वीकन करने की इदारे, again at some times the judiciary is used to weaken the legislature. Again, sir, you are here, so I take the liberty of quoting from one of the judgments. This Consul Shah Sahab ki, it's judgment इसी साल की है। This was regarding किसी शख्स को उससे चैलेंज करने की मुझे नौकरी सरकार में नहीं दी, मुझे फलाने डिपार्टमेंट मैंने इंटरव्यू दिया, पेश किया था, मुझे नौकरी नहीं दी गई और वो कोर्ट चला गया। ऐसे हमारे यहाँ रोज दरखास्तें आती हैं, वैसे इस टाइप की नौकरी दे दो, हम दे देते हैं, रोज कंटेम्प्ट हो जाती है हमारे पास। लेकिन सर जो मेडिकल की बात कर रहे थे और मैं आगे भी जाके बात करूँगा, मैं ये पढ़ देता हूँ। इस कोट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इन सर when judiciary encroaches upon the domain of the executive, as in this case, where the learned judge disregarded the eligibility criteria and the recruitment policy of the executive authority and assumed the functions of the executive, it is said to commit judicial overreach, which occurs when courts act beyond its jurisdiction and interferes in areas which fall within the executive and or legislature's mandate. Through such interference, the court violates the doctrine of separation of powers by taking on the executive functions upon itself. The instant case is, basically get the idea कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. So this has been acknowledged by the judiciary itself. Yes, there is judiciary. Yes, sometimes they do encroach the domain of the executive and the legislature. And in my opinion, कि तीनों सतून जो है इनमें से एक भी वीकन होगा तो हम तीनों अपनी वो ड्यूटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। हमारे लिए जरूरी है कि हम तीनों एक साथ हों। मैंने बात की एग्जीक्यूटिव की, मैंने बात की लेजिस्लेचर की, जुडिशरी पे आ जाऊँ। आज बहुत खुशी हुई, heard a speech of the Honorable Chief Justice of Pakistan in an event in Lahore. बहुत खुशी और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली कहा कि जी हम प्रेशर नहीं लेते, हम डिक्टेशन नहीं लेते। और उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कहा कि अगर कभी किसी ने ऐसी कोशिश की तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम ये प्रेशर और डिक्टेशन लेंगे। वेरी वेरी वेलकम वर्ड्स फॉर द मुझे आज सुनने को मिले। मैं अपने लिए ये नहीं कह सकता। मैं आई एम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, आई एम एक्चुअली वेयरिंग टू हैट्स। आई एम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आई कांट से फॉर माई सेल्फ, आई एडमिट कि मैं डिक्टेशन नहीं लेता, मैं प्रेशर नहीं लेता। लेकिन इट इज वेरी हार्टनिंग टू लर्न that the third pillar of the state does not take dictation and does not take pressure. और इसी से मैं अपने जो आखिरी हिस्से में जाता हूँ कि आईन के अंदर कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि हम जमहूरियत के साथ हैं और ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईन के प्रियम्बल में, प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगेन जस्टिस कंसुल शाह साहब की एक पेपर मेरे नज़र से गुजरा, which he wrote, I believe when he was not, I'm sure he was not a judge at that time, he was advocate in the Supreme Court, और उसका टाइटल था Salvaging Democracy
judiciary our last hope. Or I'll just quote a few paragraphs from that article that he wrote, the paper that he read. And I quote, "In the past, the judiciary has failed to honor democracy by allowing undemocratic traditions to take root. However, the past must not hamper our future. In future, the judiciary will have to step out of its colonial formalism and traditional common law conservatism and translate itself into a robust, enlightened and progressive judiciary." ये जैसे साहब ने कहा था, एडवोकेट नसीरुल शाह साहब ने कहा था, and he ended the conclusion of this paper was, if the judiciary is prepared to take the challenge, and if the Supreme Court is willing to lead the way to preserve, protect and defend the Constitution by going the extra mile, we can hope to salvage democracy. Sir, I've told you, I'm part of the executive, I'm part of the legislature. I don't feel confident enough. But our Supreme Court, the carry है, and you yourself have said this, we are looking towards Supreme Court and you lead the way, so we will follow. The legislature will follow, the executive will follow. और अपनी ये बात खत्म होने से पहले फिर बहस का एक शेर पढ़ देता हूँ। अगर आज औज कहे ताला ए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिश लहर और नहार रखते हैं। इंशाल्लाह ताला ये इलाज हमारे पास है। हम ये तीनों एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिलके हमारे मुल्क में जो 4 दिन की खुदाई वाले हैं, उनसे अपने आइन को अपनी पूरी ताकत में वापस ला सकते हैं। बिफोर आए में जो कहीं तक बुलाया गया था, सेक्रेटरी साहब ने बात की थी, 2-3 चीज़ें थी, मैंने नोट डाउन भी की, और असल में आप वकीलों ने अपना एक एजेंट हमारे बीच में बिठा दिया है। मुर्तज़ा वहाब साहब जहाँ बैठते हैं वो यही बात करते हैं, फिर हमारा पीपल्स लॉयर फोरम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी काबिना को कन्विंस कर देता है बड़ी जल्दी से। प्रोग्राम तो जो एक रिक्वेस्ट आई थी कि जी सिंध के सारे वकला की हेल्थ इंश्योरेंस का कोई इंतजाम किया जाए, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत सिंध ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया और इंशाल्लाह ताला वो फाइनल प्रोसेस में है। इसके साथ साथ एक और बात की थी पार्किंग के सिलसिले में, मुर्तज़ा ने भी मुझे यही थी बात, और मैं इंशाल्लाह ताला एक जो ऑप्शन बताया इन्होंने वो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करके हम कोशिश करूँगा कि वो चीज़ भी हो जाए और पार्किंग अवेलेबल हो जाए। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग थी 2 दिन पहले और हमने एक रिकमेंडेशन की है। वो रिकमेंडेशन आगे जाने के लिए मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और मैं गवर्नर साहब को भेजूँगा। हमने रिकमेंड किया है भाई काबीना में कि जी हम मीरपुर ख़ास में एक सर्किट बेंच सिंध हाई कोर्ट का बनाएंगे। ये भी मैं कह रहा था, तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें इसलिए करूँ कि हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर मुझे इधर खड़ा होना पड़े, तो कुछ सपोर्ट मुझे इधर मिल जाए लोगों से कि इधर जब हम आएंगे, इसलिए कि वो जब सियासत में आए हैं ना तो
ये मुझे पता नहीं था वैसे, लेकिन जब मैं सियासत में आया था मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं थोड़ा अमेरिका में नौकरी कर रहा था, बड़े मजे में अभी ज़्यादा उससे कि मैं एम सर्विंग पीपल नाउ, आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 20 years ऑफ माय लाइफ। उन्होंने कहा कि इधर आना, मुझे क्या पता था कि इसके साथ साथ ये भी होगा कि हर वक्त आपकी नीयत पे शक किया जाएगा, हर वक्त आपकी नीयत पे शक किया जाएगा। और अब इस चीज से के आदी हो गए और खुद अपने आप पे शक करते बहुत ज्यादा, हर चीज करने से पहले किए। मुझे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े खामोश में सुना। आई अपोलोजाइज इफ आई सेड एनीथिंग व्हिच जो किसी को बुरा लगा, बट आई स्पोक फ्रॉम माय हार्ट। अगर हम जो हमारे ऊपर आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब मिलकर पूरी नहीं करेंगे, ये मुल्क कहीं आगे नहीं जाएगा। इस मुल्क की वाहिद हल जमहूरियत है, इस मुल्क का वाहिद हल आइन की पासदारी है। आइन की पासदारी हम सबका फर्ज है, आइन का दिफा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।